just to participate in this webinar. This webinar took place, was conducted yesterday, on Saturday only, 11th of September 2021, second Saturday. I was a participant in that webinar. As the title goes, this is in connection with Azadi Ka Amrit Mahotsav, and a part of that is Shikshak Parv 2021. So 7 days program were chalked out by CBSE and other dignitaries from different departments, not necessarily from one department. On some day, KBS Commissioner is also functioning as today only KBS Commissioner is functioning as chairperson of this webinar. So from different organizations, people are undertaking these contents in such webinars. Our 10 schools were selected from Patna region, and with pride I would like to say that one of the schools chosen from Patna region is RC school under the leadership of our principal, and that was the date 11th of September 2020. We were told to participate in such webinar, listen them carefully, to prepare the brief report in Hindi version and to upload and to send the Word and PDF version to regional office, so that the same can be circulated to all the Kendriya Vidyalaya in the Patna region, and a copy of that is also sent to Kendriya Vidyalaya headquarters. So in that connection, they have requested us to assemble together to revisit this webinar, and with a very just after a few minutes we will begin with watching the webinar. We are only participants here, but this is a kind of watching only, because we have no room here to put across the questions and to clarify our doubts. For that, we will have to depend on ourselves only. We can discuss the things, we can interpret what the contents of such webinars are. Okay, the topic was, and today's topic in this meeting, as it is written there, nurturing inclusive classroom. So first thing, as you will see in this webinar, you will see recorded version of this webinar. You will see, first of all, they discussed what was the meaning of nurture, what was the meaning of nurturing. So everybody knows that we nurture certain hobbies, we nurture, we prepare for. We prepare for something is nurturing. Okay, we nurture the plants, small plants, saplings to grow into a big tree. Like that, how the very idea of inclusive classroom, समावेशी शिक्षा. अब मैं जो भी बोलूँगा हिंदी में, मुझे ध्यान आ गया कि हिंदी में ही डिस्कशन करना चाहिए. समावेशी कक्षा कैसी होगी, समावेशी शब्द का क्या अर्थ है, और इन द लाइट ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत चैप्टर 6 और 14 में वर्णित समावेशी शिक्षा की जो चर्चा की गई है, उसी संबंध में उसी को गति प्रदान करने के लिए ऐसे वेबिनार्स के आयोजन किए गए हैं, और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष भूमिका है. उनके द्वारा अनुमोदित यह कार्यक्रम है. शिक्षक पर 7 दिनों तक चलने वाला, 5 से लेके 7 दिनों से ज़्यादा होगी. मुख्यतः यह वेबिनार 7 से 17 तक 10 दिनों तक चलने वाला वेबिनार है. और 5वें दिन के वेबिनार में हमारे स्कूल को ये बता दिया गया था कि आप लोग देखिए, इसको बातें समझिए, डिस्कस कीजिए और अपने विद्यालयों में, अपने स्कूल में लागू कीजिए, और इसका रिपोर्ट जाना है. जैसा कि मैंने कहा, इंक्लूसिव नर्चरिंग शब्द का अर्थ मैं समझता हूँ स्पष्ट हो गया होगा. किसी हैबिट को, किसी क्वालिटी को नर्चर करना, जिससे उसका फुल ग्रोथ हो सके, ब्लॉसम कर सके, वो पूर्णता से होलिस्टिक रूप से, समग्रता से सामने आ सके. इंक्लूसिव शब्द का अर्थ है समावेशी. समावेशी का क्या मतलब है, इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा. संस्कृत साहित्य में एक पंचतंत्र बहुत चर्चित एक ग्रंथ है पंचतंत्र. उसका एक भाग है हितोपदेश. और हितोपदेश में हम सब लोगों ने सुना है, पंडित विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान थे, और उनको यह काम दिया गया
कि एक किसी शासक का, किसी राजा का कोई पुत्र था जो पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं रखता था, और उसको किस तरह से उसको कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी थी। लर्निंग डिसेबिलिटी और ये कई वर्ड्स व्यवहार में आते हैं। एक डिसलेक्सिया जो हम सब लोगों को मालूम है, ग्रीक लैंग्वेज में डिस UIS इसका मतलब होता है पोअर। ओके, लेक्सिया शब्द का अर्थ वर्ड से, वर्ड शब्द को ग्रहण करने में, शब्द को समझने में यदि कोई कठिनाई हो रही है तो वो एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, और इसके कारण हम पढ़ाई लिखाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और वो स्पेशल नीड वाले बच्चे का है जो डिसलेक्सिया प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। उसी तरह से डिस्ग्रेफिया, राइटिंग में समस्या है। राइटिंग में अब लिखना था डी, लिख दिया बी, लोअर केस लेटर, इस तरह की और लाख बार बताने से भी वो बच्चे नहीं समझते रहते हैं। ये एक प्रकार का इसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, और वो जो स्पेशलिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इस दिशा में काम करते हैं। और हम टीचर्स को भी माना जाता है कि हम मनोविज्ञान का भी कुछ ज्ञान रखते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक विशिष्ट हम लोगों का सिलेबस रहता है, पाठ्यक्रम में रहता है, ये कर रहे होते हैं। उसी तरह से कभी कभी कैलकुलेशन में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। कुछ खास बच्चों को बिल्कुल आने या कोशिश करें वो समझते नहीं रहते हैं, और इसके चलते वो पढ़ाई में ठीक से भाग नहीं ले पाते हैं, या हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह की जो डिसेबिलिटी है उसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं। कैलकुलस शब्द का होता है गणना से। तो ये तमाम चीज़ें वो टीचर के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि आप बच्चों को आइडेंटिफाई करें और उनके अनुरूप आपके क्लासरूम की व्यवस्था हो, स्कूल का प्रबंध भी इस प्रकार का होना चाहिए। रैंप की व्यवस्था, कभी कभी क्या है और भी फिजिकल डिसेबिलिटी है, और विजन इम्पेयरमेंट है, विजुअली इम्पेयर्ड केसेज है। किसी भी प्रकार की दिव्यांगता हो या ये मानसिक रूप से अगर कोई कमी हो उस बच्चे में, फिर भी हमारे क्लास में उसको भी उतना ही अधिकार है लर्निंग का, अधिगम करने का, और उसको भी उसी ऐसा उसको बोध न हो कि हमारे लिए समाज में कोई जगह नहीं है। क्योंकि जब इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, तब जब समावेशी शिक्षा होगी, तभी समावेशी समाज का निर्माण हो सकेगा। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इस बात की चर्चा की गई है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चैप्टर 6 और चैप्टर 14 में इस बात की चर्चा की गई। इसी विषय पर यह शिक्षक पद के अवसर पर यह टॉपिक वेबिनार का विषय था, और उसमें एक अध्यक्षा थी और प्रेजेंटर थे डिफरेंट डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से प्रेजेंटर की भूमिका में थे मिसेस रितु सेन, और कई 3 वक्ता थे, और फिर एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम हुआ था, जैसा आगे आप देखेंगे। और इस विषय वस्तु को फिर से समझने के लिए आज का उद्देश्य है। Before I go into the details of the topic of the learnings and the deliberations which go on during the session today, I do wish to, at the outset itself, do want to commend the organizers for the thoughtful selection of the topic, as well as the thoughtful selection of the wordings of the topics, especially the word nurturing. You know, which is something, nurturing is something which we do to help something or someone to grow, to develop, or to succeed. And truly, it is about time that the concept of inclusive education and inclusive classrooms gets nurtured for our young citizens and the future generations of our country. And all across the India. And it is indeed the need of the hour for several reasons. You know, I say this because the Constitution of India lays down equality and guarantees equality. Article 21 recognizes the right to education as a fundamental right. The Sustainable Development Goal obliges India to ensure that inclusive and equitable quality education is and for promoting lifelong opportunities for all is to be ensured by 2030. The United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities, the UNCRPD, was ratified by India on 1st October 2007, and its Article 24 mandates the state parties to ensure an inclusive education system at all levels. Now, it is goal in its own right, is also critical to achieving an inclusive and equitable society.
society in which every citizen has the opportunity to dream, thrive, and contribute to the nation. When we are chasing this bigger goal, then we also need to talk about for whom, why, and how. And my next slide covers for whom we need to think about bringing in our schools and giving them the quality education and making them part of the education. So primarily it is called as socially, economically and disadvantaged groups, as our NEP 2020 calls it. So gender identities, particularly the female and transgender individuals. Then socio-cultural identities, which are such as scheduled caste, scheduled tribes, OBCs and minorities. Then geographical identities, because students from villages, small towns, aspirational districts, they are not as equipped to, and the access is an issue for them. The children with disabilities, which includes all kinds of disabilities, as Madam had said, and socio-economic conditions, which also put certain children at some disadvantageous positions, like migrant communities, low-income households, children in vulnerable. मेरी प्रेजेंटेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका डेमोस्ट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं प्रेजेंटेशन अपनी शुरू करता हूँ। ओवरव्यू आप देख ही रहे हैं। इसमें इंक्लूसिव क्लासरूम कैसा क्लासरूम होता है। इंक्लूसिव क्लासरूम वो ऐसा क्लासरूम होता है, हर एक क्लासरूम में हम देखते हैं कि हर एक लर्निंग नीड्स के बच्चे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने टीचिंग प्लान करना इज वेरी चैलेंजिंग। और अगर वो गणित की बात हो तो वो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके लिए हमने टीचिंग एड्स डेवलप की हैं जो लर्निंग हाउ यू प्ले एंड लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल पर काम करती है। कैसी लर्निंग एड्स हैं ये हम देखेंगे। हमने बहुत सारे सर्वेज में ये ऑब्जर्व किया है कि बच्चे मैथमेटिक्स में डिफिकल्टी फेस करते हैं और मैथमेटिक्स के टीचर की स्कूल में भी अच्छी पोजीशन में है। तो बच्चों को मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने डाइट शिमला ने, राष्ट्रीय विस्तार अभियान ने, हिमाचल प्रदेश में ये काम शुरू किया है, जिसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये कैसी मैथमेटिक्स लैब है? ये प्लेइंग विद टॉयज इज द बेसिक हैबिट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे खेल में पसंद करते हैं और ये काम हमने राष्ट्रीय विस्तार अभियान डाइट शिमला से किया है और इन कोलैबोरेशन विद हिमाचल प्रदेश के रामनगर मैथ्स क्लब, यूनिट ऑफ ऑल इंडिया रामनगर मैथ्स क्लब। सो इस मैथमेटिक्स लैब में 75 मैथ्स इंस्ट्रूमेंट्स और एड्स हैं जो सही टॉयज फॉर्म में हम उनको डिस्प्ले करेंगे और ये कुछ सैलिड फीचर्स आप इस मैथमेटिक्स लैब के देखेंगे, इन टूल्स के देखेंगे। ये टूल्स बहुत अट्रैक्टिव हैं, बच्चों को भाते हैं और ये ऐसे टूल्स हैं जिनसे लर्निंग किए बिना बच्चा रह नहीं सकता। मैं तो मान ही नहीं सकता कि अगर हम इन टूल्स से टीचिंग करें और बच्चों को समझ आए, बच्चों को डेफिनेटली समझ आए। तो ये पहला टूल है। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे टूल है जिनसे बच्चा सीख ही जाएगा। डाइवर्स लर्निंग नीड्स का बच्चा, स्लो लर्नर बच्चा, लर्निंग डिसेबल बच्चा, तो ये है पहला टूल मेक नंबर्स व्हाइल यू प्ले। तो हम इससे क्या क्या करते हैं ये आप स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप प्लीज एक्सप्लेन करें। डॉक्टर संजीव कुमार प्लीज एक्सप्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक्सप्लेन करें। थैंक यू मैम। मैं डेमोंस्ट्रेशन में इसको ड्यू एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट टूल है मैथमेटिक्स टेबल और ये हमने 1 to 10 के लिए बनाया है, 1 to 20 के लिए भी बनाया है, लेकिन थोड़ा बड़ा है इसलिए हमने 1 to 10 पे ही फोकस किया है। ये ऐसा मैथमेटिक्स टेबल है जिसमें हमारे साइकोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि अगर बच्चे को 10 तक पहाड़े आ जाए तो बच्चों को मैक्सिमम पहाड़े आ जाते हैं और उनको मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है। तो इस मल्टीप्लिकेशन टेबल में बच्चे एक्सपेरिमेंट करके 2 नंबर को मल्टीप्लाई और धीरे धीरे वो पहाड़े में सीख जाते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है, जब बच्चे संख्याओं से खेलना शुरू करते हैं तो बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, इसको हम अरेंज कैसे करते हैं, इसको आरोही क्रम में कैसे अरेंज करते हैं, अवरोही में कैसे अरेंज करते हैं, मिसिंग नंबर्स में हम कैसे ढूंढते हैं, ये सारी एक्टिविटीज हम इस टूल से करते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमने मैथ्स में भी ये पाया है और स्टेट लेवल अचीवमेंट सर्विस में भी पाया है। हिमाचल प्रदेश समग्र शिक्षा ने असेसमेंट डैशबोर्ड डेवलप किया है, उसमें हमने ये क्रॉस चेक किया है कि बच्चे, हम ये देखते हैं कि 8वीं तक के बच्चों को भी 2 डिजिट का सम नहीं आता, हम यूजुअली अखबारों में ये पढ़ते रहते हैं। उसको आसान बनाने के लिए हमने कुछ एक्टिविटीज डेवलप की है जिनको मैं डेमोंस्ट्रेट करूंगा। नेक्स्ट, ये भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए है। ये उन बच्चों के लिए है जो एल्गोरिथम नहीं जानते, प्लस माइनस कैसे करना भूल जाते हैं बच्चे, बहुत टफ लगता है, ये उनके लिए मैंने ये उसके लिए विंडो हमने डिजाइन किया है। नेक्स्ट है घड़ी में टाइम देखना, एनालॉग वॉच देखना। ये बच्चों को 10वीं तक के बच्चों को कई बार इसका पता नहीं लगता, और हमारे पास अगर स्लो लर्नर बच्चे हैं या कोई डिसेबल्ड बच्चे हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। तो इस वॉच के थ्रू हम ना केवल बच्चों को घड़ी में टाइम देखना सिखाते हैं, बल्कि हम सर्कल पढ़ा देते हैं, हम रोटेशन पढ़ा देते हैं, रेवोल्यूशन पढ़ा देते हैं। ये सारी चीजें कैसे रिवॉल्व होता है, कैसे दुनिया घूमती है, कितना पार्ट घूमती है, ये सारा हम इस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक स्टिक्स। इनके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, केवल इतना बता रहा हूँ कि सर्कल के अलावा जो 2D शेप्स हैं, हर एक शेप की प्रॉपर्टी आप इन मैजिक स्टिक से पढ़ा सकते हैं। ये एक जादू है, और ये जादू मैं तभी पाऊंगा, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मुझे पे करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं इस जादू को नहीं करूंगा। और वो पे क्या करना पड़ेगा, वो पे करना पड़ेगा मैं टाइम। अगर टाइम नहीं तो मैं इस जादू को नहीं करूंगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमेंटल मैथ्स। ये तो हमने बच्चों को सिखा दिया, बेसिक सिखा दिया, लेकिन जब बच्चा घूमने चला जाता है उसको अपनी रियल लाइफ में भी तो गणित यूज करना है, उसको हमने सिखाना है कैसे यूज करना। उसके लिए हमने ये इलेक्ट्रोमेंटल मैथ टीचिंग एड डेवलप की है। ये मेंटल मैथ मतलब माइंड से ही बच्चे करेंगे और एकदम फास्ट करेंगे। और हमने ट्राइड एंड टेस्ट किया है, बच्चों ने ये करके दिखाया है, और इसको हम गेम मैथ से करते हैं। ये भी मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करके बताऊंगा। ये भी एक जादू है, ये जादू भी अभी आपको तभी मैं दिखा पाऊंगा अगर मेरे को मैम बता रहे हैं। तो इसमें हमने 20 शीट्स हैं और 20 लर्निंग आउटकम्स को ये एक ही एड अचीव करती है। और ये ऐसी लर्निंग एड है कि मोटिवेट्स द चाइल्ड फॉर प्रैक्टिस मोर एंड मोर। बच्चे थकते ही नहीं है, करते ही रहते हैं ना, मजा उनको आता है। तो मैम ये गाइड शिमला के मैथ्स लैब व्हील है, जिसको हमने पहले अपने स्कूल में एस्टैब्लिश किया था, और 2.5 ईयर्स से मैं गाइड शिमला में हूँ। तो हमने मैंने ये देखा कि बहुत सारे टीचर जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं तो किसी बच्चों को गिनती नहीं आती, बच्चों को 1 डिजिट 9 तक गिनती नहीं आती, तो हम क्या करें। इसके लिए हमने इस इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन किया। ये इंस्ट्रूमेंट है, आप देख पा रहे हैं। एवरी टाइम बच्चे खेलते हैं इससे ऐसे, और एवरी टाइम यू फाइंड न्यू नंबर, और ये इकाई से लेके करोड़ तक आप इंफॉर्मेशन। तो पहले हम इकाई में करते हैं, इकाई में, और एक स्थान आगे बढ़ते चलते हैं। हमने ऐसे ही मैथमेटिक्स की कुछ क्वेश्चन करवाने को हम बोलते हैं बच्चे को, थोड़ा बच्चे घुमाओ और एक संख्या बताओ, तो बड़ा बच्चों को संख्या आती है, वो बच्चे लड़ते हैं, मेरे को दो और मेरे को दो, मैं करता हूँ। हमें यही पूछा जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ग्रेड नहीं करना। डॉक्टर संजीव, आप थोड़ा सा माइक के पास आके बोले, आवाज कट रही है आपकी। ओके ओके। हमारे लिए किसी की बात क्या सकती है। नेक्स्ट ये है, देखिए वो विंडो बोर्ड, ये देख पा रहे होंगे आप। इससे हम गणित सिखाते हैं। मैं आइए मैं आपको बताता हूँ क्या सिखाते हैं। ये हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं। हम यहाँ से बच्चों को बोलते हैं कि आओ हम यहाँ से नंबर चूज करें। हम ऐसे इसको खिला देते हैं, यहाँ से नंबर चूज करेंगे। ये देखिए बहुत सारे नंबर हैं, बच्चे ने नंबर चूज कर लिया,
यहाँ 3 लगा दिया, यहाँ उसने 8 लगा दिया, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे रहा हूँ। यहाँ हमने 7 लगा लिया और यहाँ 5। अब बच्चे करेंगे। अब मेन है कि सील कैरी वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है ये केवल कैरी के लिए है, हम बच्चों को सोच सकते हैं। और हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि आपने केवल इकाई के अंक में जो आएगा वो ही नीचे लिखना है और जो दहाई आएगी वो हमेशा ही लिखनी है। तो बच्चे जब इसको ऐड करते हैं C+A, अब कुछ एक टीचर जैसे बोलेंगे कि जिन बच्चों को जोड़ ही नहीं करना आता वो कैसे इसको ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारी टूल्स हैं। ये देखिए स्टिक्स है, हम इस प्रकार के स्टिक्स बच्चों को दे देते हैं। 3 स्टिक्स लो, 8 स्टिक्स लो, इनको मिलाओ और इनको गिनाओ। अगर बच्चा इससे बोर हो जाए, क्योंकि ऐसे बच्चे बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी एक साथ के, तो हमारे पास ये बहुत सारी तकनीकें हैं। ये देख पा रहे हैं आप, हम इस प्रकार के ऑब्जेक्ट बच्चों को देते हैं कि ये स्टार गिनो, ये आप वर्ग गिनो, ये आप ये गोला, ये आप सर्कल गिनो, ये कनेक्टर हैं इनको गिनो। बनाया है ये आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार के कनेक्टर इनको भी हम गिना देते हैं, इनको गिनो। इसके अलावा हमारे पास आप ये देख रहे हैं बहुत सारे टूल्स हैं, इनको भी फिर जब बच्चा 3 और 8 करके 11 लिखता है तो ऐसे नहीं लिखता है बच्चा, ये 11। तो हम बोलते हैं इकाई को यहाँ रखना और दहाई को ऊपर ले, फिर इसको फिर ऐड करो, फिर बच्चा उसी प्रोसेस से ऐड करता है और यहाँ आ गया हमारा सम 13। तो 13 सम के लिए हमारे पास बच्चा फिर कैसे कर देता है, बच्चा ऐसे कर देता है, ये लिख दिया 3 और ये 1, तो हम इसको बोलते हैं क्या नहीं लिखना, ये हमने कहाँ लिखना, तो ये कैरी और ये 8 भी फॉर्मूला लिख के नीचे यहाँ, ये हमारा। ऐसे बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, सबट्रैक्शन भी ऐसे सीख लेते हैं। और हमने ये अपने एक्सपेरिमेंट्स में पाया है कि बच्चों ने पूछने के लिए, उसके बाद जब बच्चे इससे सीख लेते हैं तो हम सीधा बोल देते हैं बच्चे ये 6 है, ये 4 है और बताओ उसका जोड़ कितना हो। फिर इसके अलावा और फास्ट करने के लिए हम बच्चों को जादू सिखाते हैं, वो जादू मैं आपको बाद में। नेक्स्ट है, ये है वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास जिससे हम बच्चों को आरोही अवरोही संख्या, हम ऐसे बच्चों को आरोही अवरोही करते हैं। ये देखिए ये मैंने कुछ संख्याएं ले ली, कुछ संख्याएं हम बच्चों को बोलते हैं लो गई ये संख्याएं हैं, अब इनको आपने आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम की परिभाषा और कॉन्सेप्ट हम उनको समझाते हैं। हम बोलते हैं इसमें सबसे बड़ा नंबर 9 है और सबसे छोटा 1 है। अब आपने इसके बीच में नंबर अरेंज करने हैं, तो करते बच्चे देखते हैं कि 1 के बाद अब कौन सा नंबर आता है, तब आएगा इसमें जो नंबर 3 है वही आएगा। नेक्स्ट कौन आएगा, 4 आएगा। नेक्स्ट कौन आएगा, 6 आएगा। तो बच्चे ऐसे करके देखते हैं, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर और ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर, हम दोनों का सिखाते हैं और बच्चे बड़े आसानी से सीखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे सर्वे में ये पाया गया है कि बच्चे यूजुअली नंबर को एक्सपेंड करना भी सीखते हैं। 8वीं के बच्चे को भी एक्सपेंशन नहीं आती, जैसे कि नंबर आप देख रहे होंगे, ये है देखिए 6427, ये आप देख रहे हो। मैंने बच्चे से पूछा कि बच्चे ये बताओ ये कितना है, बच्चे को लगता, फिर पूछा ये कितना है, बच्चे को बोलो, फिर पूछा ये कितना है, 4 है और ये मैंने मना किया, फिर कुछ नहीं मिल पाया, केवल ये लास्ट वाला क्या हो गया, सर 6 को भी 6 नहीं बोल रहे, मैं 6 नहीं है, आओ हम देखेंगे क्या है। अब इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। आइए कैसे बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, ये निकाल दिया मैंने, ये क्या बन गया 7। उसके बाद ये क्या है, देखो 7 के नीचे क्या आया था 20, इसीलिए मैं बोल रहा था ये 2 नहीं था, ये 20 था। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को करते हैं। उसके बाद ये 4 नहीं था, देखो ये तो 400 है, और ये 6 नहीं था, ये 6000। बच्चे समझते हैं इस संख्या को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे ये संख्याएं बनती हैं। फिर हम ऐसे एक्सपेंड करके बता देते हैं, बोलते हैं तुम लोग कुछ संख्या बनाओ। अब आप इसमें देख रहे होंगे ये इसमें एक ट्रायंगुलर शेप, हम बच्चों को बोलते हैं
इससे टिप से टिप मिलाना है। ये देखिए, ये टिप है, इससे हम इस टिप को मिलाएंगे, इससे हम इस टिप को मिलाएंगे और इससे इस टिप को मिलाएंगे। ये देखिए सारी टिप हमारे पास है। और जब इसको पलट के आप देखेंगे, इसके अलावा बच्चे इसके इस प्रकार के नंबर जो हमारे पास अलग अलग प्लेस वैल्यू थे, तो बच्चे यूजली ऐसे कुछ करते हैं। तो बच्चों को ऐसे सिखाते हैं ऐड करना। ये देखिए ऐसे ऐड करना। ये देखिए 6400 है तो 100 प्लेस पे करेंगे। उसके बाद 10 प्लेस है तो 10 प्लेस पे करेगा, जब 1 प्लेस आएगा तो 1 प्लेस, जब इसको ऐड करोगे तो आप संख्या के साथ। और इस प्रकार से हमारे पास ये बहुत सारी चीजें हैं। और इससे हम 9999 तक संख्याओं को मिलाना और उनका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना और बच्चे कुछ करते हैं। हमने तो एक ही बात करना, बच्चों ने जरूरी ज़्यादा चीज नेक्स्ट है घड़ी, तो है घड़ी और हर चीज को लेते हैं आपकी टाइम बनाना। हम बच्चे को टाइम देखना सिखाते हैं। कैसे? आप देखो, मैंने यहाँ लिख दिया 12:30 आपको बनाना 12। अब देखो तो बच्चे में आप करके हम जो प्रैक्टिस करवाते हैं, ये 12 बजे, और जब हम 12:30 बनाएंगे तो ये वाली सुई भी आधा दिन है, क्योंकि इसने आधा डिस्टेंस कवर कर लिया, ये भी आधा डिस्टेंस। तो इस प्रकार बच्चे कुछ टाइम लाना सीखते हैं। इसके अलावा हम सर्कल के पार्ट्स से सिखा देते हैं। हम बच्चों को एनालॉग वॉच से डिजिटल वॉच, डिजिटल वॉच से एनालॉग वॉच, सब कुछ करना इससे सिखा देते हैं। नेक्स्ट है ये जो मैंने आपको कुछ स्टिक्स बताई थी, इन स्टिक्स से ये देखिए इस प्रकार की बच्चे बना देंगे। और हम तो बोलते हैं ये क्या है, कौन सी डिजाइन डाल रहे हैं, कौन सी कोड डाल रहे हैं, तो बच्चे में आप करते हैं, एक बार उसको बताने के लिए। नेक्स्ट है ये है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब आता है जोड़ बताना, हमने क्या अब है गुणा करना। तो हम कैसे करना, ये देखिए इसमें आप रबर बैंड देखते होंगे, ये 7 पे मैंने लगाया है, तो हमने 7 को 8 से गुणा करना है। हम दोनों रबड़ को इस प्रकार लगा देंगे 7 और 8, और जहां ये कोइंसाइड करता है कि इनका मल्टीप्लिकेशन 56। ऐसे बच्चे खुद करके देखते हैं। अब बच्चे चाह रहे हैं कि हमने 8 3 देखना है, 8 3 कितना होता है 24। ये देखिए 24 के रबड़ तो 24। किसी बच्चे एक्सपेरिमेंट करके फिर हम बच्चों को रबड़ हटा देते हैं, फिर बच्चे सीखना कर देते हैं, जो हमारे बच्चों हटा देते हैं, क्या मुझे आप मुझे बताओ 5 गुना 9 जहाँ दोनों लाइनें मिलती हैं और इनको कॉस्टिंग में इतनी है टीचर का डिजाइन दो कॉस्टिंग। नेक्स्ट है हमारा जादू। हमारा जादू है, ये है मैजिक टिप, देखो ये है, और ये 1 2 3 4 5 कुछ नहीं है, 26। ये आप देख पा रहे होंगे मैग्नेट लगा है, ये देखिए दोनों तरफ मैग्नेट, और ये चिपक जाती है। फिर हम इससे कैसे बनाते हैं, हम बोलते हैं बच्चों को देखो ये एक लाइन सेगमेंट है, ये दूसरा लाइन सेगमेंट का कंसेप्ट दे दिया। अब हम बच्चों को बताएंगे देखो दोनों लाइन सेगमेंट मिल गए, उसमें तो क्या बन गया, एंगल बन गया। ये एंगल देखो, ये एंगल तो कुछ कम हो रहा है, कुछ ज्यादा हो रहा है। अब हम एंगल की प्रॉपर्टी सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं हम बताते हैं, देखो कितने डिग्री का एंगल बना, हम बच्चों सिखाते हैं ये है 90 डिग्री एंगल। और जब ये कम होता है कम होता है इस प्रकार के एंगल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूटन कोण। जब ये एंगल 90 से फिर बढ़ गया इसको क्या बोलेंगे, ये नेगेटिव कोण। अगर हमारा एंगल ऐसे आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम विजिबल कोण। फिर ये आप नीचे को चला गया इसको क्या बोलेंगे, और अगर ये नीचे आ गया और क्या बोलेंगे। तो देखिए आपने एक दिन में को ऐसे सिखाया
का कंसेप्ट आ गया। फिर मैंने बोला अगर इसमें हम तो क्या बन गया कि ट्रायंगल बन गया। फिर हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी चाहते हैं कि देखिए जो भुजाएं हैं कोण है तो त्रिभुज में देखिए तीन शीट हैं, तीन भुजाएं हैं, तीन कोण है। फिर हम ट्रायंगल के प्रकार डालते हैं। देखिए सभी भुजाएं बराबर हैं तो भुजाओं के आधार पर प्रकार दे सकते हैं। सभी भुजाएं बराबर है तो ये है समबाहु त्रिभुज ट्रायंगल। अगर हमने एक भुजा को निकाल दिया और इसके स्थान पर हमने दूसरी भुजा को लगा दिया, ये लगा अब देखिए दो भुजाएं बराबर हो गई और इसमें हमने एक और भुजा को निकाल दिया और इसमें हमने एक और भुजा को जोड़ दिया। अब कोई भी बराबर नहीं है, अलग अलग भुजा है ये बनते हैं। फिर हम कोणों के आधार पर कुछ बनाते हैं। देखिए ऐसे हम इसको बनाते हैं। डॉक्टर संजीव एक्चुअली ये बहुत ही दिलचस्प आपका मैजिक है और आप बिल्कुल जादूगर की तरह से करा रहे हैं, लेकिन समय को देखते हुए और एक डिमांड भी आई है ऑन द चैट कि आपके जो डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस हैं उनको आई रिक्वेस्ट द ऑर्गेनाइजर्स टू प्लीज शेयर इट विद एवरीवन। तो आई विल आस्क प्लीज कंक्लूड सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके मैम 2 मिनट्स का टाइम दीजिए। इसके बाद हम इससे चतुर्भुज की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, स्क्वायर की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, हर एक प्रॉपर्टी हम बच्चों को दिखा देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ये लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपके पास कर रहा हूँ, ये है हमारा इलेक्ट्रोमेंटल मैथ। अब इसमें हमारे पास कौन सी चीज है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर की चीज है और इसमें दोनों और चीज है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं इसमें है 10 एंड यूनिट कि कितनी इकाइयां और कितनी घड़ियां। अगर हमने यहाँ रख दिया 7, 10 और 4 यूनिट मिले तो कौन सी संख्या बनती है, तो बच्चे इसको हिट एंड ट्राई करते हैं। हिट एंड ट्राई करते हैं लेकिन बल्ब नहीं ग्रो करेगा। ये देखिए बल्ब ग्रो कर रहा है, जब 74 का राइट आंसर आएगा बल्ब ग्रो करेगा। ऐसे हम बच्चों को सिखाते हैं। फिर देखिए ये है 101, इसका सक्सेसर क्या होता है, नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट वाली संख्या। बच्चे फटाफट इसको लगाना शुरू करते हैं, गेम चल रही है बच्चे करते हैं और जब राइट आएगा तो वो बल्ब ग्रो करता है और बच्चों का चेहरा भी मुस्कान से खिल जाएगा कि आई हैव फाउंड राइट। तो इस प्रकार की हमने ये 20 शीट्स जो हैं वो हमने अलग अलग बनाई है। जैसे छोटी बड़ी संख्याएं बताना, भाग करना, गुणा करना, जोड़ करना, सिंगल डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, इस प्रकार बहुत सारे 20 कॉन्सेप्ट हम इस विंडो बोर्ड से कर लेते हैं, इस मेंटल मैथ से कर लेते हैं। एक बार मैं आपको अपनी पूरी लैब का ये ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। देखिए राष्ट्रीय विस्तार अभियान, डाइट शिमला, और इस प्रकार हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ये हम मैथमेटिशियंस के बारे में भी कुछ बताते हैं अपने सेशन में जब भी हम सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैं इस प्रकार ये ऐसे एक छोटा सा मैं आपको और दिखाना चाह रहा हूँ। ये है बच्चों को पता नहीं है जैसे हायर क्लास है, ये एक जो है हमारी पहली क्लास से 10वीं क्लास तक हम इसको करते हैं। तो ये देखिए ये सिलेंडर है और ये कोण है। हमें पता है कि एक सिलेंडर में 3 कोण होते हैं और कोण का वॉल्यूम जो है वो सिलेंडर का 1/3 होता है। तो बच्चों को कैसे सिखाएं? तो स्टैंडर्ड बच्चा है वो हमारी बात को विश्वास नहीं करेगा। उसने कैसे सिखाना, करके सिखाना। तो ये इसमें देखिए फ्लिप हो जाता है, ये देखिए फ्लिप हो जाता है। अब हम बच्चों को बोलते हैं इसमें पानी भरो, बच्चे पानी भरते हैं, ये रेत भरते हैं। जब वो 3 कप इसमें डालेंगे तो अपने आप ये भर जाएगा। बच्चों को पता चल जाएगा कि इसका वॉल्यूम जो है वो 3 टाइम्स है यहाँ और इसका वॉल्यूम जो है वो 1/3 है, इसके 1/3 है। तो बच्चे एकदम से पता लग जाता है और बच्चे इसको याद करते हैं। 10वीं क्लास तक के बच्चे, उनको भूलता ही नहीं है। तो इस प्रकार में हम मैथमेटिक्स से लर्निंग बाय डूइंग से डाइट शिमला में, डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये काम कर रहे हैं और धीरे धीरे हम इसको दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी एक्सपेंड कर रहे हैं।
मैं स्वयं उसको अपनी कार में लेके जाता हूँ और उसको एक्सपेंड करता हूँ। मैं नेक्स्ट में आपसे इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर आप मेरे को कभी चांस देंगे तो मैं आपको बच्चों के साथ ही डेमो करूँगा। बच्चे सिलेक्ट करेंगे, बच्चे खुद देखेंगे, लेकिन मैम एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये 10 और 15 मिनट्स नहीं चाहिए, एटलीस्ट 1 और 2 आवर्स चाहिए, ताकि मजा भी आए। जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपको मजा तो आ रहा है, लेकिन ये जो घड़ी की सुई है ये हमें रोक रही है। तो मैम जब घड़ी सीखना है तो कोई घड़ी की सुई नहीं रोके हम ऐसे घड़ी सीखना चाहते हैं। और मैं अपनी प्रेजेंटेशन का एंड इसी से कर सकता हूँ कि अगर आप समझने को तैयार हो जाए, मैम अगर आप समझने को तैयार हो जाए तो आपको गणित से प्यार हो जाए। गणित से गीत चलाएंगे और घर घर जाकर गणित पढ़ाएंगे, खूब खेलेंगे, सीखेंगे और मौज मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस डॉक्टर संजीव कुमार। आई थिंक ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लर्निंग ने ये जो वेबिनार्स रखे हैं और ये जो इतना लंबा 7 से लेकर 17 दिन का इन्होंने जो एक शिक्षक पर्व रखा है, ये इसीलिए बिकॉज आप जैसे शिक्षक जो इतना एफर्ट कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, चाहे आप घड़ी इनको सिखा रहे हैं कैसे चलानी है, लेकिन उस घड़ी पे ध्यान ना रखते हुए आप अपना समय भी लगा रहे हैं और बच्चों को सिखाने के लिए आगे तक अग्रसर हो रहे हैं, तो कोटि कोटि प्रणाम। और ये वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई एम श्योर जितने भी शिक्षक आज जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हैप्पी टीचर्स डे एंड हैप्पी टीचर्स वीक एंड हैप्पी टीचर्स मंथ। और ये शिक्षक पर्व का सही जो सिलेक्शन इन्होंने आपका किया है वो दर्शाते हैं कि किस तरह से हमें इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव क्लासरूम की तरफ इसी किस्म की भावना ही आगे ले जाए, इसी तरह का जज्बा और इसी तरह की प्रोएक्टिवनेस हमें आगे ले जाएगी। सो थैंक यू सो मच to you and to all the teachers who joined in today and all the principals. हम सब लोग संक्षेप में सभी बातें हो गया है, लेकिन साथियों, अभी समय परिवर्तन था। जो पुरानी शिक्षा नीति है उसको हम लोग से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के क्रमबद्ध तरीके से एक एक पाँव हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी आवश्यकता है हमें टीचर्स को ट्रेन करने। मुझे अभी याद आया कि एक बार हम लोगों ने स्टाफ मीटिंग की थी इसी के लिए कि साल भर में इतने घंटे की ट्रेनिंग होनी है, तो हम लोगों का क्या सजेशन है। आई थिंक एक बार हम लोगों ने बैठक की थी इसके संबंध में। तो टीचर्स का ट्रेन होना मतलब ये है कि जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको समझना, ताकि हम लोग इम्प्लीमेंट करें। काम थोड़ा सा कई बार लगता है कि बोझिल सा है कि हम पढ़ाते भी हैं कि कब सीखें कब पढ़ाएं। समय की मांग वही है कि नए तरीके से अगर हम लोगों को परिवर्तित रूप में बच्चों को सिखाना है, जो कि आसान सा है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सारी चीज़ें हम लोग बच्चे के नज़रिए से देखते हैं तो काम वही हो रहा है कि बच्चे को आसानी से चीज़ समझ में आए। उसके लिए निसंदेह प्रयास को टीचर को ही करना है। सर आपके उत्साह और जो प्रेरणा मिल रहा है, जो प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि जरूर परिवर्तन आएगा। परिवर्तन की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। मुझे खुद यह महसूस होने लगा है व्यक्तिगत स्तर पर कि इन दिनों क्लास में जाने के पहले बहुत सारी बातें मन में नई उपजती है और ऐसा लगता है कि इस क्लास को इस तरह से करना चाहिए, इस तरह की फीलिंग्स आने शुरू हो गई। तो हम एक रूटीन जो हमारा होता था उस रूटीन से हटके जरूर अपने जैसा महसूस करते हैं और भविष्य में इसका और भी बेहतर स्वरूप सामने आएगा। इस उम्मीद के साथ में अपने प्राथमिक विभाग के वरिष्ठ शिक्षक श्री जितेंद्र जी प्रधानाध्यापक की भूमिका में, चूँकि डॉक्टर संजीव कुमार जी का आज का उद्बोधन वो बहुत कुछ ऐसा था जो हम लोगों से रिलेटेड है, इसीलिए वो इस पर कुछ संक्षेप में प्रकाश डालें और अपने विचार जनता का संदेश। आदरणीय प्राचार्य महोदय, वरिष्ठतम शिक्षक श्री वीके झा सर,
मेरे विद्वान साथियों, आज जो इस वेबिनार का आयोजन किया गया, मुझे लगा कि डॉक्टर संजीव कुमार द्वारा बताया गया, जो भी उसमें बहुत सारे टीएलएम थे, तो हमारे पास भी उसमें से कुछ हैं, अभी भी हैं, जिसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते। इस ढंग से उन्होंने बताया है जो बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीख पाएंगे। चूँकि हम लोगों को भी इस तरह का ट्रेनिंग, ये लॉकडाउन जो जब से कोविड-19 आया है उस दौरान दीक्षा पोर्टल के द्वारा और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तरह तरह के ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं। उसमें निरंतर हम लोग अपने अनुभव को आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं, जिसका उपयोग बच्चों के बीच में करना आवश्यक है। नई शिक्षा नीति के अनुसार पहले और आज की शिक्षा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। इसका अध्ययन करने की और इस तरह की वेबिनार अटेंड करने की हम लोगों को आवश्यकता है। उस पर ध्यान देते हुए हम अपने वर्ग शिक्षण के क्रम में इसका उपयोग करें, जिससे बच्चे भरपूर लाभ उठाएं। इस वेबिनार की व्यवस्था जो हम लोगों के बीच में की गई है श्री जी.के. झा सर के द्वारा, मैं उनको विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।